Biggest crisis that the national capital Delhi is facing. It's not just the heat wave, but the water crisis as a result as well. Now, what has unfolded is several parts of Delhi are witnessing a shortage of water supply. There have been chaotic scenes witnessed in certain areas where people are running after water tankers to get their share. Literally, water wars are breaking out. It's led to a political showdown as well. The top court slammed Aam Aadmi Party government for the inaction to control the crisis. But the Aam Aadmi Party government, the elected government, is shifting blame to Haryana government and also the Lieutenant Governor. It's said that water tanker mafias are operating from Haryana, not from Delhi, and that is why the situation is worsening. Delhi government in the affidavit has said they cannot take any action on the tanker mafias, also due to the jurisdiction. The Delhi police, meanwhile, on Thursday swung into action after India Today did a special investigation. And that report showed how the tanker mafias were profiteering in the national capital because of the kind of malpractices followed. After an order by Lieutenant Governor V.K. Saxena, Delhi police has tightened the surveillance around a certain canal, Munnak Canal in Bhawana, which is the border area. How has this canal become the focus? Listen in now to what the netas are saying and our reporters on the ground. Delhi is reeling under water crisis and the action can be seen on the ground. Right now you have Delhi Water Minister Atishi along with Delhi Jal Board officials and the ADM and SDM to check upon any possibility of wastage of water through the main pipeline of the Delhi Jal Board. But Delhi government is saying that not by cracking only on the tanker mafia, that would not solve the problem. That is just 0.5% of the problem. But the major issue right now is that Delhi is facing water shortage by 40 to 50 MGD every day, and that can be recovered, that can be resolved only when extra water is sent to the national capital from Himachal through Haryana. आज तक के ऑपरेशन टैंकर माफिया का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली पुलिस की टीम फिलहाल अगर आप देखें यहाँ पर मुनक नहर के पास मौजूद है। एलजी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा था कि मुनक नहर के आसपास निगरानी बढ़ाई जाए, जिसके बाद भारी भरकम दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पीसीआर वैन के साथ और जो बाइक पेट्रोलिंग है उसके साथ यहाँ पर मौजूद है। और मुनक नहर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो मुनक नहर है। आज तक इंडिया टुडे ने अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये बताया था कि कैसे मुनक नहर के आसपास अवैध तरीके से बोरवेल लगाई गई है और उसके जरिए बड़े पैमाने पर जो वाटर माफिया है वो टैंकर भर रहे हैं और औने पौने दाम पर बेच रहे हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है बड़ी संख्या में, और जो ये पेट्रोलिंग स्टाफ है वो बड़ी संख्या पे यहाँ पर मौजूद है। और अब 3 शिफ्ट में बकायदा जो है वो निगरानी यहाँ पर की जाएगी पूरे मुनक। देखिए ये जो पेट्रोलिंग बाइक है ये इस तरीके से इस इलाके में घूमेगी। हमारे साथ जो स्थानीय संवाददाता है राजेश खत्री, हम उनसे भी पूछते हैं, कभी आपने राजेश यहाँ पर पेट्रोलिंग देखी थी? देखिए, पेट्रोलिंग की बात की जाए तो पेट्रोलिंग तो ना के बराबर ही होती है, क्योंकि हमने तो कभी यहाँ पर कोई पेट्रोलिंग देखा नहीं है कि पेट्रोलिंग होती है। रही बात जैसा कि जब खबर की थी टैंकर माफिया, तो उनका तो बड़े बड़े दावे थे कि पुलिस को हमारा हफ्ता जाता, मंथली जाती है, एसडीएम ऑफिस में जाती है। तो सवाल तो अरविंद भाई काफी उठ रहे प्रशासन के ऊपर भी, प्रशासन के ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन अब इसी को देखते हुए यहाँ पर अगर आप देखिए तो पीसीआर वैन है और तकरीबन 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी 6 थानों के अब वो मुनक नहर की निगरानी करेंगे। तो आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का ये बड़ा असर हुआ है। न सिर्फ जो आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री वो जागे हैं, बल्कि दिल्ली पुलिस भी अब जागी है और अब मुनक नहर की पूरी तरह से निगरानी होगी। कल आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में ये दिखा था कि किस तरह से इलीगल टैंकर माफिया दिल्ली के अलग अलग कोने में काम कर रहे हैं। मुनक कनाल के सब ब्रांच के पास इलीगल बोरवेल डाल के पानी चोरी किया जा रहा है। तो इन सब से भी तो असर पड़ रहा है और सवाल यह है कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा था इन पे? देखिए, 2 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। एक्शन बिल्कुल होना चाहिए। अगर गलत तरीके से चाहे हरियाणा के बॉर्डर में पानी भरा जा रहा है, दिल्ली के बॉर्डर में पानी भरा जा रहा है, तो हरियाणा पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए, दिल्ली पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए और हम उस एक्शन का स्वागत करते हैं। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि जो दिल्ली में 1000 MGD पानी प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें से कितना हिस्सा टैंकर में जाता है? दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चलाता है, वो 1000 टैंकर रोज 6 से 8 ट्रिप करते हैं। इतना बड़ा टैंकर्स का नेटवर्क होने पर 6 से 8 हजार टैंकर्स की डिलीवरी पर मात्र 4 से 5 MGD पानी इस्तेमाल होता है। आप इसमें लगा लीजिए कि अगर कुछ प्राइवेट टैंकर होंगे, हो सकता है वो आधा MGD पानी और यूज करते हो।
अगर वाटर टैंकर्स पे, प्राइवेट टैंकर्स पे लगाम लगाई भी जाएगी तो आपका 0.25 mgd पानी बचेगा, 0.5 mgd पानी बचेगा, हो सकता है बहुत हो गया तो 0.75 mgd पानी बच जाए। लेकिन जो 40 mgd पानी की कमी है वो वाटर टैंकर्स पर लगाम लगा के पूरी नहीं की जा सकती है। वो तभी पूरी की जा सकती है जब हरियाणा से पानी आएगा। दिल्ली में जो पानी का संकट है ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया हुआ संकट है ताकि वो अपने भ्रष्टाचार में लिप्त रहें, ताकि वो टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि इल्लीगल टैंकर माफिया के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। पानी 40% पानी जो दिल्ली का है वो वाटर वेस्ट होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार उसके लिए क्यों कुछ नहीं कर रही। इनकी नीयत ही नहीं है दिल्ली को इस संकट से उभारने के लिए, और इसीलिए दिल्ली का प्यासा मरना इन्होंने दिल्ली की नीति बना दिया है। Take a look now at the special investigation report. Water tanker mafia is operating with impunity, and India today decided to blow the lid off of black marketing of even water that is being done. Who is this water tanker mafia, and how are they allowed to even operate in Delhi at a time when there is a massive water crisis? A special investigation operation, Water Mafia. India's capital, Delhi, is thirsty and parched. Despite the Aam Aadmi Party government's promise of free and clean water in taps for Delhiites, wars on the streets for every drop as tankers struggle to quench Delhi's thirst. As the capital goes dry, the notorious tanker mafia is having a free run. This ruthless lobby busy fleecing a thirsty population of the capital for a few extra bucks. To expose this racket, going without any checks, India Today's undercover team reached Delhi's Sangam Vihar, where we met Ritesh, a tanker mafia operator who runs this business from his home. Our undercover team sought water to build a house. टैंकर मिल जाएगा हैं? साकेत दे दो तो पैसे नहीं दे देंगे। ट्रैफिक वाले पकड़ लेते हैं दे दो, रात को दे दो, रात को मिल जाएगा। हाँ साकेत कौन सी जगह है? कौन सी जगह बैठ जाओ? सेक्टर 4 में कुछ बिहार में, उसको लोकेशन भेज दूंगा आपको। इसमें आता है 2200 लीटर 2100 लीटर पानी है। इसमें आता है 2100 लीटर पानी। अच्छा ये जाएगा 1500 रुपये का। 1500 रुपये 2100 लीटर हमें तो ज़्यादा चाहिए। कौन सा चाहिए आपको? इससे बड़ा भी है? टैंक है नीचे। हाँ हाँ टैंक है। है हमारे पास 12,000 लीटर का। हाँ आपका टैंक कितना बड़ा है? 12,000 15,000 का 12,000 दे दो चल जाएगा। अरे हमारा पूरा खाली हो जाना चाहिए। हाँ 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 और नहीं हुआ टैंक आपका भर गया तो उठेगा नहीं वो हमारा ही हेडेक है। पूरा खाली हो जाए वो बढ़िया बात है। अगर पानी बचा तो वो उठेगा नहीं। ऐसे आप बोलोगे ऊपर टंकी चढ़ा रहे हैं मोटर से, उठ जाए वो उठेगा। The water mafia operates in almost every street of Sangam Vihar, the worst hit by Delhi's water crunch. 2 streets away, we met Mohan, who not only had an illegal bore well, but also a huge water tank inside his home. Our spy cameras captured the tanker being filled from the bore well, throwing all norms out the window. We met Mohan here and asked him for a water tanker. भैया पानी का टैंकर चाहिए। बैंक करोगी छोटा बड़ा बड़ा 2200 रुपये का। कितना लीटर का है? 4.5 से काम होगा। 4,500 लीटर 2200 रुपये।
पानी मुझे 12,000 लीटर चाहिए। एक गाड़ी है 12,000 लीटर, तो बैंक वाले दे दोगे? कितने का पड़ेगा? 4,500 का? 2200 रुपये। Then Mohan told us that the groundwater level is falling and that they're having difficulty filling the water tanker. कितने इस पे आ रहा है पानी अभी नीचे? और 1 घंटा में एक गाड़ी घड़ी जा रही है। 1 घंटे में एक गाड़ी। कितने फुट पर है पानी? 650 फुट पर। 650 फुट पर। The tanker mafia is earning lakhs by selling water from illegal bore wells, stealing Delhi's already rapidly falling water table. पानी की वो तो मकान बनाने के लिए मिल जाएगा हमें। तो बात हमारे यहाँ मकान बनाओ, चाहे नहाओ, चाहे भी कुछ करो, मगर एक दिन छोड़ के एक गाड़ी चाहिए। हाँ, एक दिन छोड़ के एक गाड़ी चाहिए। The tanker mafia brazenly extracts water from illegal tube wells which dot the Wazirabad area of Yamuna Khadar in Delhi. Here water tankers are being filled openly. We met Ramesh, who runs one such illegal tube well. आप क्या करते हो? आपका क्या? हमारा तो टैंकर आओ ना भर दे। आप भर देते हो बस? कितने पैसे लेते हो? जैसा टैंकर है। फिर भी 500 रेट भी है, 600 को भी है, 700 को भी। हाँ। जैसे टैंकर है। तो अगर 12,000 लीटर का टैंकर होगा तो कितना? 500 रुपये। 500 रुपये भर देते। Buying water from illicit tube wells has become a part of life in these parts of the capital. We wanted to know how many water tankers Ramesh fills daily and whether he could arrange a tanker for construction work. और आपके यहाँ कितने टैंकर आ जाते हैं डेली? तो हमारे तो ऐसे 2-4। कोई है टैंकर वाला या हमें लाना पड़ेगा टैंकर? मैं बात कर रहा हूँ टैंकर वाले से। ठीक है, हमें ना हम गोडाउन बना रहे हैं। कई जगह बनाने हैं। पानी कैसा आपका? पानी मीठा है जी। पानी मीठा है। यमुना का ही होगा ऐसा लगता है। यमुना का लगता ही होगा पानी तो। अभी भर रहा तालाब को। आगे भी भर रही। हम यहाँ नए इस एरिया में को पकड़ रहे। ठीक है रहो। अगर पंडित है या और भी है, उनकी अपनी सेटिंग है। तो बस उनकी अपनी सेटिंग है ना। आप दिल्ली में पानी गिर रहे हैं, सारी दिल्ली में। सारी दिल्ली में गिर रहे पानी में। यहीं से आप यहाँ से भर रहे हैं? कई जगह है यहाँ से। अच्छा, कितने ट्यूब लग रहे थे? कितने लग रहे थे? यहाँ इतनी सामने लग रहा। अच्छा, सामने कहाँ पे? हाँ, वो नीचे उतर गए? नहीं, सामने कमरा बना। अरे वो लग तो रहा है सामने। अच्छा ये? हाँ। ठीक। तो जो रोड पे लगा रखे तो को रोकता नहीं? मैं रोड पे लगा रखे तो रोकता नहीं? पानी कमी तो है ही ना, पहाड़ ना राजस्थान यहाँ नहीं। जमुना बराबर बहरी, तालाब बराबर कौन रोकता है? The big question, who will rein in Delhi's water looters, or will the water mafia continue to plunder Delhi of its precious pani? With Nitin Jain in Delhi, this is India Today's special investigation team.